मोर देन 200 ईयर्स से जो डिस्क्रिमिनेशन रहा है उनके स्टेट की ओर से वह खत्म किया जाए। नई कॉन्स्टिट्यूशन बनी और अगर नहीं हुआ तो फिर विद्रोह होगा। 90% जहाँ पर हिंदू हैं, अब 5% बुद्धिस्ट है। अब जनताओं के बीच में नहीं पूछा गया कि धर्म सापेक्ष चाहिए, धर्म निरपेक्ष चाहिए। आसमान छूने का दिल कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या जमीन में बैठने के लिए ही नहीं जगह मिल पाने की अवस्था और स्थिति। We want a good friendship, cooperation, not the hegemony and dictatorship. We want peace in our country. India has been acting as the big brother, and there is not the progress in our democracy, and that's not good. हमारा देश कंपैरेटिवली इंडिया की तुलना में कमज़ोर देश है, गरीब देश है। हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि अनइक्वल ट्रीटीज़ में नेपाल ने बहुत सारी चीज़ लूज़ किया। जरूर सबकी पहचान सुनिश्चित होंगे इस संविधान के मार्फत। पहले जब वो निर्वाचन हुआ था कुछ पोलराइज था। वो हमारा छोटा भाई है, तो बड़े भाई को अपनी दादागिरी का अंदाज छोड़ के एक अपनापे से बराबरी के स्तर पे रिश्ता बनाना होगा। One of the paradoxes of India's relationship with Nepal was that we managed for the longest time, for 6 decades, to have good relations with both the monarchy, briefly with the Ranas when they were ruling, and with the democratic parties. India does not allow us to have the equal type of treatment. 50 के TT के अंतर्गत में जो मिल रहा है वो नहीं देगा तो क्या होगा कल? Implication तो बहुत डेंजरस है यहाँ पर। India is a safety valve for Nepal. India and Nepal, closely linked geographically and culturally, yet two separate nations, with definite policies on treatment of the other. Down the centuries, relations and equations between the neighbors have changed and evolved. भारत की स्वतंत्रता के दौरान नेपाल में राणाओं का प्रभुत्व था। उसके बाद पंडित नेहरू के ज़माने में नेपाल के राजा ने हमसे मदद मांगी और हमने उनकी मदद की और राणाओं का प्रभुत्व खत्म किया और राजशाही को पुनः स्थापित किया। उस ज़माने में नेपाल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी और वहाँ पे एक जनतंत्रीय सरकार थी। धीरे धीरे राजशाही प्रबल होती चली गई और जो जनतंत्र था खत्म होता चला गया। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आ गई जब नेपाल के अंदर एब्सोल्यूट मोनार्की थी और उसके बाद से जो हालात हुए ऐसे आते चले गए कि वहाँ पे प्रदर्शन हुए, फिर धीरे धीरे कुछ हद तक जनतंत्र की पुनर्स्थापना हुई और उसके बाद जब जनतंत्र से लोग खुश नहीं हुए तो वहाँ पे माओवादी विद्रोहियों ने विद्रोह किया, आर्म्ड रिवोल्ट किया और फिर उसके यहाँ हिंसा होने लगी। और उसके बाद इस तरह के हालात बने कि वहाँ पे कुछ राजनीतिक समझौता हो सका, वहाँ पे एक चुनाव हुए, चुनाव के बाद एक हुकूमत आई, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 साल तक रही पर कोई संविधान नहीं ला पाई। अब दोबारा चुनाव हुए हैं, अब दोबारा ये प्रक्रिया जारी है। It is said to be the home of the Himalayas. Nepal's greatest treasure remains the mighty Mount Everest. Even alongside nearly 2 decades of unrest and strife. Nepal's borders were determined in a treaty signed after a war with the British between 1814 and 1816. Since 1846, when the Ranas took over the reins, the landlocked nation was virtually cut off from the rest of the world. The country did get opportunities for a revival, but atrocities, frequently by the rulers themselves, actually made things worse for the people.
In 1991, for the first time ever, a coalition was formed in Nepalese parliament. But it did not last. Within the next 5 years, Maoists had snatched the reins. Another turning point came on the 1st of June 2001, the massacre of the royal family in the Narayan Hitti Palace. Shocked the world. It is believed the heir to the throne, Prince Dipendra, killed 9 members of his family and himself. The dead included King Birendra and Queen Aishwarya. Prince Dipendra died in hospital 3 days after the massacre without recovering from a coma. Many also believe there was a foreign hand behind the massacre. Doubts were cast on India's role in the massacre, though nothing was proved. Even amid the blame game, the king's brother Gyanendra Bir Bikram Shah took over the throne. In 2005, he dismissed the government. This gave rise to the People's Movement. A new bill passed by Parliament made Nepal the only Hindu country in the world. In 2007, a constitutional amendment brought the monarchy to an end, and Nepal was declared a federal republic. Modern Nepal came into being. Elections in 2008 gave rise to the Constituent Assembly, tasked with framing a new constitution to give the nation direction. The stated aim was a nation giving equal rights to people of all communities and regions. A Maoist government was handed this responsibility. The Nepalese people trusted the rebels and entrusted to them the task of nation building. It is unfortunate indeed that Nepal has gone on to become a stagnant democracy. There is still no written constitution in place. People were given a voice and the freedom to dream, but achieving those dreams is something they just did not know how to. ये उनकी लड़ाई है, उनकी भी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए और उन्हें चाहे अपॉर्चुनिटी में हो स्टेट की ओर से, चाहे उसके राइट्स हो, उनके इक्वल ट्रीटमेंट उसका हो। तो वो लड़ाई जो है इक्वालिटी की भी लड़ाई है, आइडेंटिटी की भी लड़ाई है और रिसोर्स और पावर में शेयर करने की भी लड़ाई है, जो लास्ट कई 100 वर्षों से वह जो है उसे अलग रखा गया था, वो अब ख़त्म होनी चाहिए। तो ये तो होना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ, नई कॉन्स्टिट्यूशन बनी और अगर नहीं हुआ तो फिर विद्रोह होगा। अब क्या है, कितना करें और कैसे करें, ये इसमें विवाद, इसमें डिस्कशन हो सकती है, लेकिन मुल्क के पास तो दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है इसको छोड़ के। यहाँ पर जनभावना के अनुसार यहाँ के नेताओं ने कुछ काम नहीं किया। यहाँ की जनभावना निराश और दुखमय है। जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं आएगी देश में, ये संभव नहीं है। नेपाल में आमूल परिवर्तन मतलब आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करने का हमारा लक्ष्य था। पहले ही डिमांड था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। हमको एक मजबूरी हो गया उसके बाहर आने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ उसको बिना कॉन्स्टिट्यूशन जनता को दिए वो डिजॉल्व कर दिया गया। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन था, हम समझते हैं एक ड्रामा के तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो पहले ही वो सब का सपोर्ट, किसी ने भी विरोध नहीं किया था, सभी ने पार्टिसिपेट किया था, इंटरनेशनल सपोर्ट था। मैं भी यह समझता हूँ कि बदलते समय के रिक्वायरमेंट्स के तुलना में हमारे संबंध उतनी ज़्यादा डायनामिक नहीं हुए। नाउ टाइम हैज़ कम कि हमारे अपने संबंध को
बेसिकली आर्थिक विकास के दृष्टि से देखा जाए। The first Constituent Assembly could not finish the work allotted to it. One reason for that has been difference of opinion within. Even now, it can't be said that the tussle has ended. Even now, on one hand, there are parties pushing for a strong centre. There is also a strong lobby for a federal system giving recognition to regional and tribal identity. Some parties favour the French model of direct election of a president. Others want a parliamentary system like India. Sections for return of the monarchy remain, though their influence has reduced drastically. The Maoists initially promoted democratic movements, but they soon started extending support to armed fighters and protected them from punishment. The peace process came up against massive hurdles. There is a lot of romance about the Maoist, लेकिन बस ऐसा होता है कि मैंने भारत में भी देखा हूँ कि हमारे दोस्त लोग जो हैं कि भारत में माओवादी के बारे में कट्टर खिलाफ में, लेकिन नेपाल में है तो वो दूसरा जगह है, दूसरा कंट्री है, somebody else's backyard है, वहाँ तो they live their college romance of radical left in a दूसरा society. ऐसा हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, ज़रूर थकान महसूस हुआ है। लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी संविधान बने, देश एक लोकतांत्रिक रास्ते पे आगे बढ़े, ये लोग चाहते हैं। जैसे हमने पहले निर्वाचन हुआ संविधान सभा के, उसके मार्फत संविधान नहीं बना, आशा बढ़े हैं और हमने एक वर्ष में संविधान बनने के प्रण किया है, उसका कार्यतालिका भी आ चुका है। मुझे लगता है कि अब जो लोगों के को जो थकान और अविश्वास जो इस प्रक्रिया के ऊपर और पार्टी के ऊपर हो रहा था, और इस बार हम एक वर्ष में जब संविधान बनाने में कामयाब होंगे तब ये लोगों को विश्वास में। The people of Nepal have seen a lot, but do they believe that a bad democracy is still better than monarchy? Nepal has seen 6 prime ministers in the last 8 years. What have India's policies towards an unstable Nepal been? And has India understood the hopes, expectations and political dynamics of a rapidly changing Nepal? वहाँ पे जो हिंदुत्व की बात आक्रामक रूप से करे, जो इनका यहाँ तेवर है, वैसे ही तेवर वाले लोगों को से अपना पा गांठना चाहते हैं, तो उसी तरह से कम्युनिस्ट जो हैं वो कम्युनिस्टों से अपना रिश्ता बनाते हैं। वो लोकतंत्र के लिए जो तमाम लोकतांत्रिक ताकतें हैं उनसे वो रिश्ता कम बनाते हैं। मोटे तौर पे कम्युनिस्ट एक ढंग से सोचते हैं और उसी तरह की वो अपेक्षा करते हैं नेपाल के कम्युनिस्टों से। कम्युनिस्टों में यहाँ आपस में भी सहमति नहीं है। वामपंथी जो पार्टियों मोर्चे में हैं कम्युनिस्ट, उनका एक नज़रिया है। भारत के समाजवादी और नेपाली कांग्रेस के लोग मिलके काम करते थे और कांग्रेस में गैर समाजवादी लोग भी नेपाली कांग्रेस को मदद करते थे। इसलिए अब मतभेद हैं कि नहीं ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि साउथ ब्लॉक ही जो है वो रिश्ते तय करता है। नेपाल एक स्वतंत्र देश है, उसको जिस तरह की प्रणाली चाहता है वो उसका अधिकार है, लेकिन नेपाल की सरकार को भी ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि भारत के हित क्या हैं और भारत किस रास्ते पे चलना चाहता है। जैसे हमारे वामपंथी दल हैं, उनका एक नज़रिया है नेपाल की तरफ, वैसे ही बीजेपी और कुछ एनडीए पार्टियों का अलग नज़रिया है, कांग्रेस का एक और नज़रिया रहा है कि नेपाल किस रास्ते पे चले। लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि भारत में ने नेपाल के अंदरूनी मामलों में कभी भी वास्तविक रूप से हस्तक्षेप नहीं किया। सिविल नौकरशाही जो विदेश मंत्रालय है उसके हाथ से भी लगता है
की नीति निर्धारण उसके हाथ में भी रहा है कि नहीं, इसके बारे में भी संशय होता है। और नेपाल के संदर्भ में जो राजनीतिक पहल और राजनीतिक जिम्मेवारी दर्शानी चाहिए थी यूपीए को या उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को, दोनों ने ये जिम्मेवारी नहीं निभाई है। और भारत की जनता को नेपाल के लोकतांत्रिक संघर्षों और आकांक्षाओं के बारे में शिक्षा देना, जानकारी देना, ये हमारे राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेवारी है और उन्होंने ऐसा नहीं किया है, ना यूपीए के तौर पे किया है, ना यूपीए की सरकार के तौर पे किया है। जो तरह तरह के सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्ते हैं, अभी उनकी लगातार शिकायत रहती है कि हमको तो अंदाज़ ही नहीं होता भारत चाहता क्या है। साउथ ब्लॉक का एक अलग वो रहता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अलग अपेक्षाएं रहती हैं, राजदूत कुछ और सुर में बात करते हैं। हमको प्रामाणिक बात क्या है इसका अंदाज नहीं होता। The present India-Nepal relationship is based on the Peace and Friendship Treaty signed between them in 1950. In the last decade, many questions have been raised on this treaty, especially by the Maoists. Opponents to the treaty in Nepal say it does not treat both countries as equal. They say it does not allow Nepal to form its own army as well as international policies, and that it threatens Nepal's sovereignty. Another grouse is the feeling that the treaty does not allow Nepal to use its natural resources freely. भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है, हम कैसा संबंध चाहते हैं? पंचशील के आधार पर बराबर का संबंध हम चाहते हैं। ऐसा स्थिति है कि अनइक्वल ट्रीटीज हुए हैं और इसका साइज भी बहुत छोटा है। इस तरीके से एक बड़ा देश के पड़ोसी देश होने के नाते हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि अनइक्वल ट्रीटीज़ में नेपाल ने बहुत सारे चीज़ लूज़ किया। एक छोटा देश, गरीब देश लूज़ नहीं करना चाहिए था। जो दृष्टिकोण रही है नेपाल के प्रति, उसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है। माइक्रो मैनेजमेंट में नेपाल में नहीं जाना चाहिए। रिलेशंस और डेवलपमेंट, डिप्लोमेटिक रिलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कोऑपरेशन में ज़्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए। But not everyone is against the treaty. Opinion remains divided over India's role in Nepal and the future of the Nepalese population in India. पहले का ट्रीटी था और माओवादी लोगों ने इसको बहुत ज़ोर शोर से उठाया था, लेकिन जब वो खुद सत्ता में आए उनको महसूस हुआ कि कुछ बातें ऐसी है जिसकी आवश्यकता हमारे लिए भी है। फिर भी समय के साथ साथ उसको अपडेट करना और समय के मुताबिक उसको सान्दर्भिक बनाना वो उचित बात है। इसके लिए कुछ होमवर्क करके, दोनों देशों की तरफ होमवर्क करके हम कुछ कर सकते हैं व्हिच कैन बी बेनिफिशियल टू बोथ कंट्री। हमारा ख्याल से तो टीटी और नो टीटी, टीटी हो न हो, नेपाल भारत संबंध में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यदि टीटी बदलता है तो हम लोग क्या कैन वी मैनेज आवर ओन शो विदाउट इंडियाज हेल्प? कल इंडिया बताएगा कि इफ इंडिया ट्राई टू हैव ए पॉलिसी ऑफ इक्वल फुटिंग दूसरी देश के साथ, जैसे एमएफएन ट्रीटमेंट टाइप का, उसमें हुआ तो क्या कैन वी मैनेज आवर शो? यदि इंडिया ट्राई टू कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग कंडीशंस, अभी जो दे रहा है, जो बेनिफिट्स हो रहा है नेपाली को, इंडिया को जो है, वो उसको कंटिन्यू करने से तो टीटी नहीं होने से भी होगा। लेकिन दे हैव नेवर गॉन फॉर द abrogation of the treaty. On the one hand, they don't say anything about the treaty. They have no alternative agenda. They only talk about the unequal treaty. नेपाली लोग 70-80 लाख रुपए नेपाली काम करने इंडिया में, कल क्या होगा? वो इंडिया इज ए सेफ्टी फॉर नेपाल। प्रोपेगेंडा नेपाल के अंदर चल रहा था, उसका एक बहुत बड़ा स्रोत राजशाही भी थी। नेपाल की विभिन्नता दर्शाने के लिए वो भारत विरोध, और अगर आज भी आप देखें तो जो भी भारत विरोधी जो प्रोपेगेंडा चलता है नेपाल के अंदर, वो काठमांडू वैली से चलता है। भारत के जो राजनयिक नेपाल में रहे हैं, काफ़ी समय तक उनके खिलाफ ये एक्यूजेशन रहा है कि वो वाइसरॉय की तरह अपने आप को कंडक्ट करते रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से किसी भी सोवरेन स्टेट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। The
Indian government's viewpoint or the conduct of its diplomats. Reality still says that a series of conceptions, true or false, persist in Nepal about India, and they raise a sense of opposition, even revolt against India. A large section believes India does not have a clear-cut Nepal policy at all. There's a feeling that bureaucrats have been left to manage the show. While India should help Nepal as a small brother, should also not try and dominate it. Not as a small brother, as a friend. As a friend. Yes. Since the decade or since the introduction of democracy in Nepal, one has to go peacefully, but we are not facing the same kind of thing as we are expecting. Like India has been acting as a big brother, and there is not the progress in our democracy, and that's not good. We want peace and establishment and also a good relationship with India. But since the Indian government, it has been imposing its hegemony and dictatorship to our place. That's not good. We don't want that kind of democracy as it does, as it has been doing in case of our country. India has always had a special relationship with Nepal. But despite this, there's a feeling that India is more concerned about China's rising influence in Asia. How true is that? Was that we managed for the longest time, for 6 decades, to have good relations with both the monarchy, briefly with the Ranas when they were ruling, and with the democratic parties. Don't forget that when the Nepali Congress drew its inspiration from India, the very fact that we were dealing with a monarch as a respected neighbor did not mean that we were abandoning the Nepalese Congress, and so on. And the same thing has been happening with other parties. And there are Chinese companies in India too. That doesn't mean that they're going to control us. Now that Nepal has become a democratic nation, it becomes imperative for India to make its way into people's hearts there. At the moment, India is deliberating as to how to complete Nepal's constitution so that the political situation stabilizes. It is only then that both nations can work on mitigating the influence of countries like China among India's biggest concerns. Also, both nations can then utilize natural resources like water in a harmonious way. कोमल, ये बताइए कि लोकतंत्र यहाँ पर आया पिछले 8 साल में, लोगों को बहुत सारा तरह की निराशा भी है, लेकिन आशा की बात हमें आप बताइए, क्या क्या बेहतर हुआ है? बेहतर तो होने वाला है, अभी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा हो गया कि लोग को स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन उसमें थोड़ा सा अराजकता आ गया। कोई कंट्रोल करने के लिए कुछ सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, इसीलिए हम सफ़र कर रहे हैं कि कोई अनुशासन में नहीं रहते हैं, महंगी बढ़ गई है, लोगों को सिक्योरिटी फील नहीं होते हैं, और इंडस्ट्री भी उतना सा बढ़ती नहीं जा रही है। लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं, लोकतंत्र ने उन्हें सपने देखना तो ज़रूर सिखाया है। जी, वही सपना दिखाया है, लेकिन सपना को पूरा करने के लिए वो कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो जनता की ओर नहीं देख रहे हैं और वो अपने आप से देख रहे हैं। तो चलिए, अपना कोई खूबसूरत सा गीत हमें सुनाइए जिसमें बहुत सारी उम्मीद हो, निराशा दूर हो जाए और तमाम आज़ादी और तमाम जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है गाने की, अदाकारी की, वो सब हमें मिल जाए। कोई खूबसूरत सा गीत सुनाइए। अच्छा, ठीक है। मेरो देश मलाई सबैभन्दा प्यारो छ, मेरो देश मलाई सबैभन्दा प्यारो छ, यो माटो बिना म बाँच्नै सक्दिन, यो बाटो बिना म हिँड्नै सक्दिन, म मरु म बाँचु, मेरो जिन्दगी मेरो देश हो, मेरो देश मलाई आफै भन्दा प्यारो छ। A rapidly changing and developing Nepal also raises the need to fulfill a lot of dreams and aspirations there. Nepal's Constituent Assembly has a huge responsibility to fulfill. On India's part, the next government has to put in place a concrete Nepal policy, keeping in mind sensitivities of the Nepalese people. Democratic and secular dreams look to move towards fruition there too. Arfa Khanum Sherwani for Rajya Sabha TV.